Assalamu alaikum dear students, class 11, unit thermodynamics. एंड टॉपिक जो है गिव्स फ्री एनर्जी एंड फ्री एनर्जी चेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी किसे कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी it is denoted by the letter G, and mathematically it's a thermodynamic property, or it is a thermodynamic quantity. It's an extensive property. It is an extensive thermodynamic property. सो नंबर फर्स्ट आपने यहाँ पर याद रखा गिब्स फ्री एनर्जी जो है उसको हम डिनोट करते हैं लेटर जी से, एंड इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड इज अ थर्मोडायनेमिक property. Mathematically, this Gibbs free energy is given as G is equal to H minus Ts. Mathematically जो है that is the Gibbs free energy जो है that is equal to the H minus Ts, where G is equal to Gibbs free energy H is equal to enthalpy and T is equal to temperature and S is equal to entropy. So Gibbs free energy is mathematically given as H minus Ts, where H is the enthalpy, T is the temperature and S is the entropy of the system. Suppose if we have two systems having the Gibbs free energy, having free energy G1 and G2, then G1 and G2 is given as, if we have a system A, it is free energy is G1 and this G1 is equal to H1 minus Ts1. Similarly, when we convert this system into the another, that is the B system, its free energy is G2 and is equal to H2 minus Ts2. Suppose this is our equation first and this is our equation second. अगर हम अब subtract करेंगे equation second from the first from the second, we get G1 minus G2 is equal to H2 minus H1 minus T into S2 minus S1. We have here we have G2 minus G1. हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली ये कहा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है that is equal to H minus Ts. Now हमने सपोज किया कि if we have a system A, इसकी फ्री एनर्जी जो है that is equal to the G1 and that G1 is equal, according to the definition, that is equal to the H1 minus Ts1 at constant temperature. And इसी तरह से है when it gets converted into the system B, it is a free energy is given as G2 is equal to H2 minus Ts2. Then we have to subtract the equation first from the equation second. यहाँ से आएगा G2 minus G1 और यहाँ से है H2 minus H1 minus T जो है that's constant, बाहर आएगा H2 S2 minus S1, while G2 minus G1 that is change in the free energy that is given by the delta that is given by the delta G. Change in the free energy from the final state minus initial state is equal to del G. That then we have the change in the enthalpy that's equal to the del H minus T S2 minus S1 that's equal to the del S.
This equation is called Gibbs-Helmholtz equation. This is called Gibbs-Helmholtz equation. गिब्स फ्री एनर्जी जो है मैथमेटिकली दैट्स गिवन बाय द जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। फिर हमने दो सिस्टम्स कंसिडर किए, जी A1 एंड A2 हैविंग द फ्री एनर्जी G1 एंड G2। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, वी गेट द Gibbs-Helmholtz equation that's called the del G is equal to del H minus T del S, where del G is the change in the Gibbs free energy, H is change in the enthalpy and del S that's change in the entropy। अब हम definition निकालेंगे what Gibbs free energy is। Here we have from the first of thermodynamics we have a relationship between the amount of the heat absorbed, work done and the internal energy। From first of thermodynamics we have from first law of thermodynamics वो तो हमें पता है क्या है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द हीट Q is equal to internal energy change that's called the del E plus work। Now this work it is equal to the work of expansion plus work of non-expansion। Q is equal to ये इक्वेशन हमने कहाँ से लाई है, ये हमने लाई है from the first of thermodynamics where we have a relationship between the amount of the heat absorbed, internal energy change and the work done। So we have Q is equal to, suppose this is our equation, first we have Q is equal to del E plus work। So del E is equal to Q is equal to del E plus ये वर्क जो है that is the sum of work of expansion plus work of non-expansion। work of expansion that is the pressure volume work done, जिसके लिए हमने इक्वेशन भी डिराइव की थी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, P del V प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। So we have Q is equal to del E प्लस वर्क ऑफ एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, P del V प्लस work of non-expansion। हमने क्या किया, we take the equation from the first law of thermodynamics where heat is equal to the internal energy change plus work, and this work जो है that is basically the sum of work of expansion plus work of non-expansion। work of expansion के लिए हमने derive की थी equation that work of expansion जो होता है pressure volume work done that is called the P del V plus work of non-expansion। अब ये देखो del E plus P del V that is called the enthalpy change। Q is equal to del H plus work of non-expansion plus work of non-expansion। ये del H कहाँ से आया, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज जो है किसके बराबर है, del H इज इक्वल टू del E प्लस P del V। यही वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, P del V del E प्लस P del V के बदले हमने क्या लिखा, del H यहाँ पे। नाउ Q amount of the heat absorbed reversibly and isothermally that is given as, this is our equation second। अब मैं इसको रब करूंगी। Now amount of the heat absorbed isothermally and reversibly is given as क्यों किसके बराबर, डेल एस किसके बराबर है, फ्रॉम द एंट्रोपी चेंज जो हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है ऑलरेडी, दैट्स एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल
डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो इसको हम ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स टी डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। अब क्यू रिवर्सिबल के बदले हम क्या लिखेंगे, टी डेल एस। इसको यहाँ पर हम सबस्टिट्यूट करेंगे, द सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द क्यू रिवर्सिबल इन इक्वेशन सेकेंड। Substitute the value of substitute the value of substitute the value of Q reversible in equation second we get। क्यू के बारे में क्या लिखूंगी आप, टी डेल एस किसके बराबर है, डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब इस डेल एच को हम यहाँ लाएंगे, दैट इज टी डेल एस माइनस डेल एच इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। अब यहां से अगर हम बाहर निकालेंगे माइनस को, माइनस अंदर क्या रहेगा, दैट इज डेल एच माइनस टी डेल एस, माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस, माइनस इंटू प्लस दैट बिकम्स माइनस, इज इक्वल टू वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन आप किसके बराबर है, that is given as del h, और इस माइनस को मैं यहाँ लाऊंगी, that is del h is equal to del h minus t del s is equal to minus work of non expansion। इस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन को हम कहते हैं what this del h minus t del s, जो हमने अभी डिराइव की थी इक्वेशन, दैट इज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, del h minus t del s is equal to del g is equal to minus work of non expansion। सो अब हम ये डिफाइन करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को अब हम डिफाइन करेंगे। इट इज द वर्क डन by the system, the decrease in whose value is equal to the useful work done by the system। Gibbs free energy may be defined as decrease in whose value, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, वो जो हो डिक्रीज जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड बेसिकली द एनर्जी, द डिक्रीज वो एनर्जी कम होती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट्स वर्क and that's called as the Gibbs free energy change। The decrease Gibbs free energy change may be defined as decrease in whose value is equal to the useful, this work of expansion is also called as the useful work, del g is equal to minus w useful। So Gibbs free energy change may be defined as the decrease in whose value is equal to the useful work done by the system। The Gibbs free energy may be defined as decrease in whose value is equal to the useful work done by the system। That's called as a Gibbs free energy। So हमने क्या कहा, first of all we have the Gibbs free energy, that's called the G is equal to H minus Ts। फिर हमने दो सिस्टम्स कंसिडर किए, वहां पर हमने इक्वेशन डिराइव की, दैट्स कॉल्ड द गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। फिर हमने डेफिनेशन निकाली गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वायर del G is equal to minus
W यूजफुल। सो गिब्स फ्री एनर्जी में बी डिफाइंड एज डिक्रीज, यहाँ पर ये माइनस है, इसका मतलब है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड दैट डिक्रीज इज कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क विच इज कॉल्ड एज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, अब हमें ये डिस्कस करना है कि गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी में क्या रिलेशनशिप है। Gives free energy change and the spontaneity of a process. Gives free energy change and spontaneity of a process. Gives free energy and spontaneity of a process. Basically Gibbs free energy change जो है that is delta G is equal to del H minus T del S. It consists of both the factors which will determine the spontaneity of a process. That is the delta H and del S, that is enthalpy change and the entropy change. They will decide, यही दो decide करते हैं whether the process is a spontaneous one or a non-spontaneous one. तो इनका जो resultant है resultant magnitude that is equal to the del G. सो डेल जी हमें बताएगा कि इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा और जीरो आएगा तो प्रोसेस क्या हो सकती है। नंबर फर्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे, इफ डेल एच इज नेगेटिव, अगर डेल एच नेगेटिव है दैट मीन्स ये फैक्टर जो है ये फेवर करता है किसको, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को, एंड ऑल्सो and if del S is positive, ये फैक्टर भी क्या करता है, ये फैक्टर भी फेवर करता है किसको, स्पॉन्टेनिटी को। अब यहाँ आ जाओ, ये माइनस है, ये माइनस टी डेल एस, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकम्स नेगेटिव, एंड ये वाला और ये वाला प्लस आ जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगी, एंड द प्रोसेस इज हाईली स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी का वैल्यू जब नेगेटिव आता है तो प्रोसेस जो है दैट इज हाईली स्पॉन्टेनियस इन नेचर। वो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज डेल एच इज इक्वल टू माइनस, ये फैक्टर जो है ये सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनिटी को, डेल एस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल एस इक्वल टू पॉजिटिव, ये फैक्टर भी ये सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनिटी को, एंड डेल जी जो है that is highly negative and the process जो है that is spontaneous. The process is spontaneous. Number second case जो है, if del H is positive, इसका मतलब है कि ये फैक्टर जो है ये अपोज करता है स्पॉन्टेनिटी को, ये फैक्टर फेवर नहीं करता है किसको, स्पॉन्टेनिटी को, एंड इफ डेल एस इज नेगेटिव, अगर ये डेल एस जो है एंट्रोपी चेंज जो है दैट इज नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये फैक्टर भी क्या करता है, अपोज करता है स्पॉन्टेनिटी को। दोनों फैक्टर्स जो है दे अपोज द स्पॉन्टेनिटी एंड हिंस डेल जी। अब यहाँ आ जाओ, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस, एंड ये और ये ऐड हो जाएंगे एंड साइन रिमेन्स प्लस, सो डेल जी इट बिकम्स प्लस एंड हिंस द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है दैट शुड बी नेगेटिव, while as for non spontaneous processes the del G is plus, the process is non spontaneous। del G जो है that is positive and the process is non spontaneous। This is second case. Now the third case क्या है हमारे पास, थर्ड केस जो है,
del H is, if del H is negative, that means ये फैक्टर जो है ये फेवर करता है किसको, स्पॉन्टेनिटी को. del S is negative, del S भी नेगेटिव है, दैट मीन्स ये फैक्टर जो है ये अपोज करता है स्पॉन्टेनिटी को. अब हमें बताना है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है या नॉन स्पॉन्टेनियस. इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू. सो ये फैक्टर फेवर करता है, ये फैक्टर अपोज, नॉट फेवर्स. ये फैक्टर अपोज करता है. Now the value of the G, whether it is negative or plus, it depends upon the magnitude, resultant magnitude of the two. If magnitude of the del H is greater than T del S, तो value क्या आएगा, negative आएगा, and hence del G is negative and the process is spontaneous. Del G is negative and process is spontaneous. And if अगर del T del S का मैग्नीट्यूड ज्यादा है del H से, तो डेल्टा G का वैल्यू प्लस आएगा and the process is non spontaneous. If del H is less than T del S, तो del G जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा. The process is non-spontaneous. Number third, ये है A part, this is B, and number C part जो है इसी का. अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डेल्टा H is equal to T del S. If डेल्टा H is equal to T del S, तो del G का वैल्यू क्या आएगा, that is equal to 0. उस वक्त क्या है कि Gibbs free energy change जो है that becomes negative, it is equal to the 0 and the process is at equilibrium. The process is at equilibrium. जितना फॉरवर्ड, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी उतनी ही बैकवर्ड, जितना वो स्पॉन्टेनियस है उतनी ही नॉन स्पॉन्टेनियस, एंड द प्रोसेस दैट इज इन इक्विलिब्रियम. ये है नंबर थर्ड फैक्टर, व्हेन द एंथैल्पी फैक्टर फेवर्स एंड द एंट्रोपी फैक्टर अपोजेस. At that time, the process is either spontaneous, non-spontaneous, or it's at equilibrium. It depends upon the magnitude of the following factors. अब जो लास्ट क्राइटेरिया जो है, that is लास्ट वन जो है स्पॉन्टेनिटी का विद रेस्पेक्ट टू द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज इफ. फोर्थ जो है, इफ डेल्टा H इज पॉजिटिव. अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट अपोजेस, नॉट फेवर्स. डेल्टा S इज पॉजिटिव, फेवर्स. अब जो प्रोसेस है, whether it is spontaneous or non-spontaneous, here also that value of the del G depends upon the resultant magnitude of the two factors, that's favoring factor and the opposing factor. If magnitude of del H is greater than T del S, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, प्लस. यहाँ पर क्या है, वैल्यू माइनस. तो यहाँ पर ये वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये कम है, तो वैल्यू आएगा डेल्टा G का प्लस, एंड हिंस द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. डेल G जो है इट बिकम्स पॉजिटिव एंड द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. A. नंबर सेकेंड, B. इफ डेल H, अगर डेल H लेस देन है, अपोजिंग फैक्टर लेस है, कम है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेवरिंग फैक्टर, तो डेल G का वैल्यू नेगेटिव आएगा. वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, नेगेटिव आएगा, एंड हिंस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस.
एंड सी पार्ट जो है, इफ del H is equal to T del S, then del G का वैल्यू 0 and the process is at equilibrium. So ये था the topic that is related Gibbs free energy change related with the spontaneity of a process. तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी. गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर जी, एंड मैथमेटिकली दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन दैट इज जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. फिर हमने दो सिस्टम्स कंसिडर किए, वहां पर हमें एक इक्वेशन डिराइव हो गई दैट इज del G is equal to del H minus T del S, and this equation is called Gibbs-Helmholtz equation. फिर हमने ये इक्वेशन जो है del G जो है इसकी डेफिनेशन निकाली कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है, माइनस W यूजफुल, द डिक्रीज इन हुज वैल्यू इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम. एंड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द इंटरनल एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू द हीट, व्हाइल सम अमाउंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू द यूजफुल वर्क. एंड जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है उसी को हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. फिर हमने वेरियस केसेस डिस्कस किए रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, एंड इन नटशेल वी विल रिमेंबर दैट अगर किसी भी प्रोसेस का डेल्टा जी जो है दैट इज नेगेटिव, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. डेल जी का वैल्यू जिस वक्त भी नेगेटिव आएगा तो वो प्रोसेस क्या हो सकती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर. डेल जी का वैल्यू हमेशा आप याद रखोगे, इफ इट इज नेगेटिव प्रोसेस जो है प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, एंड इफ डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा डेल जी का वैल्यू क्या आता है, दैट इज पॉजिटिव. एंड वो प्रोसेसेस जो इक्विलिब्रियम पर होती है वहां पर उनका डेल जी जो है किसके बराबर होता है, 0. द प्रोसेस is at equilibrium. So this was all about the unit that is thermodynamics, and in the next video lecture we will take some other unit. Thank you so much.